Let's start. Tell me the first Prime Minister of India. Jawaharlal. Second Prime Minister of India. Gulzarian. Third Prime Minister of India. Lal Bahadur Shastri. Fourth Prime Minister of India. Gulzarian. Beautiful. Fifth Prime Minister of India. Indira Gandhi. Sixth Prime Minister of India. Sixth Prime Minister. Tell me. Morarji Desai. Loudly, say loudly. Seventh Prime Minister of India. Charan Singh. Eighth Prime Minister of India. Indira Gandhi. Ninth Prime Minister of India. Rajiv Gandhi. 10th Prime Minister of India. VP Singh. Beautiful. 11th Prime Minister of India. Chandrasekhar. Beautiful. 12th Prime Minister of India. P.V. Narasimhan. Beautiful. 13th Prime Minister of India. Atal Bihari Vajpayee. 14th Prime Minister of India. Prime Minister. H.D. Dem Gowda. Oh, beautiful, beautiful. 15th Prime Minister of India. 15th Prime Minister. Tell me. Indra Kumar Gujral. 16th Prime Minister of India. Tell me. 16th Prime Minister. Atal Bihari Vajpayee. Beautiful. 17th Prime Minister of India. Manmohan Singh. And 18th Prime Minister of India. 18th Prime Minister of India. Narendra Modi. Beautiful. Now tell me the 5th Prime Minister of India. 5th Prime Minister of India. Indira Gandhi. Beautiful. And 11th Prime Minister of India. 11th Prime Minister of India. Chandrasekhar. Beautiful. 13th Prime Minister of India. 13th Prime Minister. Atal Bihari Vajpayee. Beautiful. 7th Prime Minister of India. Charan. By this method, we will be able to learn inventions and their inventor. The first invention is telephone and its inventor is Graham Bell. इमेजिन करिए आपके घर में एक फोन रखा हुआ है और जब वो उसकी बेल बजती है वो गर्म हो जाता है तो ग्राहम बेल गरम बेल फोन हो जाता है गरम जब उसकी बेल बजती है। इससे आप याद कर सकते हैं टेलीफोन का है ग्राहम बेल। नेक्स्ट है रेडियो, उसका है इन्वेंटर मार्कोनी। सोचिए आपके दादाजी बोल रहे हैं और आपके पास एक रेडियो है, मुझे आज तो गाना सुनना ही पड़ेगा, मुझे अपने पुराने जमाने के गाने सुनने हैं, तो इसको मार्कोनी से हो गया इसका मार्कोनी, तो अब ये याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टेलीस्कोप और उसका इन्वेंटर है गैलीलियो। सोच आप गैलीलियो से गलीलियो, गली में लियो घूम रहा है और वो टेलीस्कोप लेकर घूम रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, पता नहीं अगर आप उसने आपको ढूंढिए तो क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है। और थर्ड और लास्ट है टाइपराइटर, उसका है क्रिस्टोफर शॉल्स। तो क्रिस्टोफर शॉल्स, क्राइस्ट इज ऑफरिंग शॉल। तो आप क्या इमेजिन करिए आपके घर में एक टाइपराइटर है, वो पुराना हो गया, आजकल जो लैपटॉप यूज होते हैं और कंप्यूटर, तो उसको सर्दी आती है, तो जीसस क्राइस्ट इज ऑफरिंग शॉल टू हु? योर टाइपराइटर। तो आप याद कर सकते हैं क्रिस्टोफर शॉल्स का टाइपराइटर। नमस्कार, माझे नाव ओम बालाजी मापारी आहे। मी आज तुम्हाला भारताच्या सर्व पंतप्रधानांची नावे क्रमवार सांगणार आहे। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 गुलजारीलाल नंदा, 3 लाल बहादूर शास्त्री,
गुलजारीलाल नंदा. 5. इंदिरा गांधी. 6. मोरारजी देसाई. 7. चरण सिंह. 8. इंदिरा गांधी. 9. राजीव गांधी. 10. VP सिंह. 11. चंद्रशेखर. 12. PV नरसिंह राव. 13. अटल बिहारी वाजपेयी. 14. HD देवेगौड़ा. 15. इंद्र कुमार गुजराल. 16. अटल बिहारी वाजपेयी. 17. मनमोहन सिंग आणि 18. नरेंद्र मोदी. 6 पंतप्रधान कोण होते 6 नंबरचे? मोरारजी देसाई. HD देवेगौडा कितव्या नंबरचे होते? 14. गुलजारीलाल नंदा 2 and 4. 10 नंबर. VP सिंग. 18 नरेंद्र मोदी. इंद्रकुमार गुजराल. 15. 17 मनमोहन सिंग. लाल बहादुर शास्त्री. 3. 6 मोरारजी देसाई. ओके, sit down. Hello everyone, I am Varsha Mahapatra and I want to share my view on the Brainwood content. I am using this app since 1 month and Brainwood is such a content which deals with ridiculous and funny pictures which one can utilize in his or her own way for memorizing different answers. And it is not that he or she will use the same method for memorizing the different kinds of answer, but because it deals with a vast number of methods. For example, there are methods for remembering short answers, long answers, even the objective type answers, and for this it deals with the most boring part, which is the recollection. And I'm a kind of student who uses to write a number of times the answer for remembering. And to my amusement, when I used a trick, brain science trick, for remembering a long answer, it was like coming automatically to my mind. I was not putting any type of pressure on my brain for the recollection of the proper answer. Yes, it took a few time for making the trick and for making such pictures ridiculously, but after making the pictures, it was very easy for me to write the long answer in very smooth manner. And it was like it takes time first, but it deals with the time management, because before it took me various number of I was using reading. I used to read the paragraphs, I used to write the answers. After that also I was not able to get the proper answer, but thank you to Brainwood that it gave me such various methods for remembering the answers. Thank you. Good morning, my name is Manchipal. I am in class 7th. I learned Prime Minister's name by Brainwood methods. 1. Jawaharlal Nehru. 2. Gulzarilal Nanda. 3. Lal Bahadur Shastri. 4. Gulzarilal Nanda. 5. Indira Gandhi. 6. Morarji Desai. 7. 7. Chaudhary Charan Singh. 8. Indira Gandhi. 9. Rajiv Gandhi. 10. VP Singh. 11. Chandrasekhar. 12. PV Narasimha Rao. 13 अटल बिहारी वाजपेयी. 14 H देवगौड़ा. 15 इंद्र कुमार गुजराल. 16. हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेनवुड सॉफ्टवेयर के बारे में. माय नेम इज गौतम. आई रीड इन क्लास 7. ठीक, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के बारे में. तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जल्दी से चलते हैं. तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ और देख लीजिए. ठीक, तो हम सबसे पहले अभी जाते हैं ब्रेनवुड के सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे. ठीक, आपको आवाज़ आ रही होगी, देख लीजिए. यह लेवल 1, लेवल 2,
लेवल 3। इसमें 5 टाइप्स के लेवल हैं, उसमें बहुत सारे लेसन हैं और इसमें जनरल नॉलेज भी है, अमेजिंग हिस्ट्री भी है और कोडिंग भी है और इंग्लिश लेसन भी हैं इसमें और पावर पॉइंट भी है और वैदिक मैथ भी है। ठीक, तो मैंने अभी कोडिंग सीखी थी और मैंने गेम भी बनाया था और मैंने बहुत सारे लेवल भी देखे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ तब भी। ये देखिए, इसमें 11 लेसन हैं, ये 11 है और लेवल 2 में 12 है, लेवल 3 में 9 है, लेवल 4 में भी 11 है और लेवल 5 में 5 लेसन है। ठीक, तो जनरल इसमें और भी नए नए टॉपिक्स आएंगे अभी। ठीक, जैसे कि पहले बस लेवल्स थे, अब जनरल नॉलेज आ गई है, अमेजिंग हिस्ट्री और कोडिंग भी आ गई है। मैंने अभी कोडिंग के ही देखे हैं लेसन, मैंने देख लिए हैं लेसन कोडिंग के 19 लेसन देख लिए हैं मैंने कोडिंग के। और फिर मैंने 9th लेसन पे गेम बनाया था, लॉन्च रॉकेट लैंडर, और गेम बनाने के बाद फिर मैंने उसे खेल के भी देखा और फिर वो वर्क भी कर रहा था अच्छे से। अगर आपको कोडिंग भी सीखनी है और वैदिक मैथ या फिर आपको कोई भी चीज़ इसमें से सीखनी है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सब बच्चों को एक बार तो इसे लेके देखना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को। तो ठीक, और इसमें जनरल नॉलेज भी है। देख लीजिए, इसमें 5 लेसन है स्टेट ऑफ इंडिया और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं और इसे मैंने खुद यूज़ किया है और मुझे लगा है कि मेरी इससे पढ़ाई बहुत इम्प्रूव हुई है। और तो हम वापस से अपने कैमरे में आ गए हैं और मैं ये थैंक्स कहना चाहूँगा ब्रेनीवुड टीम को, क्यों उससे ब्रेनीवुड से मेरी बहुत स्टडी इम्प्रूव हुई और हर बच्चे को एक बार तो यूज़ करके देखना चाहिए। বেঞ্চ সায়েন্সৰ পলিমেথড ইউজ কৰি প্ৰায় 100টা নাম্বাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। 3.141592653589793238462648845 5028841971 69399375110 58209 74944 5923078164 062862089 86280 34825 34211 70679. Hello everyone, my name is Roshni and I am a BSc final year student. So since the last few days I have been watching different videos by Mr. Vinod Sharma on Brainwood, and there are a few things that caught my attention which is needed to reach an ample amount of audience at the earliest. These videos contain different tricks and tips and methods to memorize various things that we study or just to have a general IQ about. By using such tricks and tips, students can memorize a lot of things within very less amount of time and a memory for lifetime. This will help them score good grades, which will automatically boost their confidence, and the will to achieve more is never gonna stop after that. They will face exam fear never in their life again. This app will teach you how to use your brain. Like, I have seen students doing all possible methods to memorize a certain fact, but Brainwood will teach you exactly which method you need to memorize a certain fact, and the wastage of time is gonna stop after this. They use different pictures and videos to make the videos interesting, and students can learn the different things and the study in a fun way. There are certain methods that I personally like that the personal imaging system. Like, you use one's personal experience to memorize a certain fact. What's more interesting than this? And next, I like the phonetic method, like the use of numbers to memorize certain facts.
I remember being a child, I used to stick periodic table on the walls of my study room to memorize it. But it took me a lot of days to memorize it fully. But still, I am not confident if I remember all of that. But by using the Brainwood, what I saw that memorizing a periodic table and 118 elements was just a piece of cake. It was very easy to remember, and the teaching is also in a very fun manner that you will never gonna forget all of this. Thus, I recommend all the students and all the teachers to please incorporate Brainwood on their learning process and have a happy learning ahead. Thank you. I am Komal Singh Gautam. I am studying class 7 from Dardran School, Bhutti Board in Nagpur. My day-to-day study is so difficult and hard, but after using Brainwood app in my study is so interesting. In Brainwood app, so many brain science levels. In these levels are brain science method and general knowledge. These brain science methods are developing our brain science skills. There are also live classes and so many courses such as WordPress course, PowerPoint course, coding course for kids. This course is helped to make enjoyable. Coding course is help in making app an enjoyable course. PowerPoint course to useful in presentation developing skill. WordPress course in help to make website and blogs. Vedic math course in help in solve the math problems, addition, subtraction, division, multiplication. And HTML course are also here. I say thank you for Brainwood for this beautiful course. My name is Nitesh Sharma of class 8 of Wisdom Public School. The brain science, it is basically a very unique thing to learn the things in a very unique manner. It helps in our school studies and mental ability of our mind, and we learn the names of presidents, prime minister, and in a very unique manner. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र चौधरी, सीनियर एजुकेशन काउंसलर, स्टडी एंड लर्न इन स्मार्ट स्कूल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, एनसीआर। आज की शुभ संध्या में मैं सभी दर्शकों को ब्रेन साइंस इंडिया, ब्रेनवुड एंड स्टडी एंड लर्न की तरफ से मैं बधाई देता हूँ। साथ ही बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच पुनः शुभम कुमार जी बैठे हुए हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी पढ़ाई एक नई तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। इस वजह से कोई भी छोटी से छोटी वस्तु बड़े से बड़े प्रश्नों को याद बहुत आसानी ढंग से करते हैं, और इसमें अहम भूमिका ब्रेन साइंस इंडिया और ब्रेनवुड एवं स्टडी एंड लर्न। तो आइए बिना देरी किए मैं उस ब्रेनवुड के नाम से जाने वाले बच्चे शुभम कुमार जी का परिचय मैं आप लोगों से कराता हूँ। Good evening, sir, and good evening to everyone. I am from class 6, St. Teresa School, Bhagalpur. शुभम कुमार जी बहुत आसानी से अपनी पिछली बार देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, देश के राष्ट्रपति का नाम और बिना समय लिए आपने जवाब दिया। और अब आज बताएं, आज आप क्या सोचेंगे, दर्शकों को क्या बताएंगे, फिर आप बताएं। Today I will tell inventor and invention's name. तो आज आप आविष्कार और आविष्कारक के नाम बताएंगे। तो बिना देरी किए मैं चलता हूँ और आप अंत में दर्शक को ये भी बताएंगे कि आपने इसे कैसे किया। ओके, तो चलिए शुभम कुमार आप बताएं, मोटरसाइकिल की आविष्कार किसने किया? डैम्लर। और प्रेशर कुकर की? डेविड पेपिन। रेडियो? मार्कोनी। टेलीस्कोप? गैलीलियो। टेलीविजन? गियरबर्ड। टेलीफोन?
Graham Bell, हवाई जहाज, Wright brothers, बल्ब, Thomas Alva Edison, सिलाई मशीन, Alas B. Bohm, गुड, दीवार पर, Paul, सेफ्टी पिन, Walter, कैलकुलेटर, Pascal, कंप्यूटर, Charles Babbage, लिफ्ट। Eliska Graves Otis, ओके, बहुत अच्छी बात है। टाइप राइटर, Christopher Sol, ईमेल, Roy Tomlinson, इंटरनेट Bob Khan, एंड साइकिल, Carl von Darius, स्टीम इंजन, James Watt, टेलीविजन, G.L. Bird, मोबाइल। Martin Cooper, वाह, आपने बहुत अच्छी तरह से आविष्कार और आविष्कारक का नाम बताया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसे कैसे याद किया। कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू रिमेंबर दिस टॉपिक्स? It is possible by the help of Brain Science India और Brainio। क्या आप दर्शकों को बताएंगे? जैसे बाई चांस मैं पूछ लूं, मोटरसाइकिल के आविष्कार जो है किसने किया था? Daimler। तो डेमलर आपने कैसे याद किया? In India I can explain। Yes, you can explain in Hindi also। by एक बार डैम के पास जा रहा था और डैम पे जाके लग गया। ओह, मैंने मोटरसाइकिल से डैम पे जा रहे थे और डैम के पिलर से वो टकरा गई और जिससे जो है लड़ गई। इस तरह से आपने डैमलर याद किया, बहुत अच्छा। तो प्रेशर कुकर को आपने बताया था, क्या नाम बताया था आविष्कारक का? डेविड पेपिन। तो डेविड पेपिन को आपने कैसे याद किया? जब प्रेशर कुकर हीट हो जाता है तब उसमें सीटी बचता है, हम लोग ऊपर से पिन कर देते तब इससे हो गया डेविड पेपिन। ओके, तो रेडियो का आविष्कार कौन थे? मार्कोनी। मार्कोनी को आपने कैसे याद किया? जब रेडियो नहीं चलता है तो हम लोग कोनी से मारते हैं, मार्कोनी, इसलिए मार्कोनी हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। और टेलीस्कोप को? गैलीलियो। कैसे आपने याद किया? एक गली में एक लियो आ गया और टेलीस्कोप से आदमी लोगों को ढूंढ रहा था, इसलिए। और टेलीफोन? ग्राम बेल। ग्राम बेल को आपने कैसे याद किया? जब टेलीफोन में बेल बजने के बाद वो ग्राम हो जाता है तो ग्राम बेल। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इनको सुना है और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आशा करता हूँ कि अगले पार्ट्स में आप कुछ नया सुनाएंगे और दर्शकों को बताएंगे कि ये कैसे याद होता है। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और किसी भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि आप इस कुमार की तरह पढ़िए और ये एक संदेश है और इसी तरह याद कीजिए। और यदि आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। शुभम कुमार जी, अब आप जा सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल और वेलकम टू ब्रेन साइंस इंडिया पावर्ड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा। दोस्तों, बड़े हर्ष की बात है, आज मैं जिस बच्चे का मुलाकात में आप लोगों से परिचय मैं करवाने जा रहा हूँ, आप लोगों की असीम कृपा व आशीर्वाद से भागलपुर ही नहीं संपूर्ण बिहार में ब्रेनीवुड के नाम से जाने वाला बच्चा किसी परिचय का मोहताज नहीं। प्रश्न उठता है कि अब हम बिना देरी किए मैं उस शख्सियत से, मैं उस बच्चे से मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ। अब ये उनसे जानते हैं कि वो अपना पढ़ाई इस तरह से करते हैं कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से, बड़ी ही एक आसानी से मेथड से वह याद कर लेते हैं। आइए मैं उस बच्चे से आपका मैं परिचय कराता हूँ। तो शुभम कुमार जी, आप दर्शक को बताएं कि आपका परिचय क्या है। Good evening to sir, good evening to everyone. I am Shubham Kumar, class 6 from St. Teresa School, Bhagalpur. शुभम कुमार जी, आप क्लास 6 में हैं और सेंट टेरेसा स्कूल भागलपुर में पढ़ते हैं। Yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि आपने पार्ट 1 में आपने बनाया था कि देश के
प्रधानमंत्री का नाम बहुत इजी ढंग से आपने याद किया। और आज आप क्या सुनाएंगे? आप दर्शकों को क्या बताएंगे? Today I will tell President's name. ओह, आज आप देश के राष्ट्रपति के नाम बताएंगे। Yes. तो बिना देरी किए मैं आपसे पूछता हूँ और उसके बाद हम जानते हैं कि आप इस टेक्निक को आपने कैसे याद किया है। तो ये बताइए कि who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. Okay. Second president of India? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Wow, good. Third president of India? Dr. Zakir Hussain. Fourth president of India? Fourth. V.V. Giri. और fifth president of India? मोहम्मद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह. Okay. Sixth president of India? V.V. Giri. Seventh president of India? फखरुद्दीन अली अहमद. Eighth president of India? B.D. गत्ती. Okay. Ninth president of India? नीलम संजीव रेड्डी. 10th president of India? ज्ञानी जेल सिंह. 11th president of India? आर वेंकटरामा. Good. 12th president of India? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. 13th president of India? के आर नारायण. 14th president of India? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. 15th president of India? स्मिता प्रतिभा पाटिल. 16th president of India? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी. And 17th president of India? डॉक्टर रामनाथ कोविंद. Okay. आपने तो ये ग्रेजुअली एक एक करके मैंने पूछा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के आपने 17 प्रेसिडेंट का नाम आपने बताया। अगर मैं 20 से कहीं किसी का नाम पूछ दूं तो क्या आप बता देंगे? Yes, I can tell. Yes. तो 10th president of India? ज्ञानी जेल सिंह. 17th president of India? डॉक्टर रामनाथ कोविंद. And 12th president of India? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. Absolutely right. आपने बहुत अच्छी तरह से आपने याद किया और इसीलिए लोग आपको भागलपुर ही नहीं कई जगह से मैसेज आते हैं कि ब्रेनीवुड ब्रेनीवुड ब्रेनीवुड। अब आप ये बताया आपको लोग ब्रेनीवुड क्यों कहते हैं? आपके स्कूल में भी आपको बच्चे ब्रेनीवुड क्यों कहते हैं? आपके मित्र भी आपको ब्रेनीवुड क्यों कहते हैं? एंड प्लीज टेल मी इन शॉर्ट, आप दर्शकों को बताएं आपको ब्रेनीवुड क्यों कहते हैं? Because I have learned everything with the help of Brainwood method. That's why people know as me Brainwood. Okay. Oh, you learned everything with the help of Brainwood. And Brainwood is such types of software and which is powered by Dr. Vinod Kumar Sharma. And who is Dr. Vinod Kumar Sharma is a very famous and memory expert. Okay? Yes. Do you know him? Yes, I Yes. know. Okay, very very thank you, धन्यवाद आपको। आपने ये बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और आप अपने बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आप भी शुभम कुमार की तरह बनिए और आप भी मेमोरी टेक्निक का अप्लाई करके और से किसी भी चीज को किसी भी विषय वस्तु को आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये एक न्यू टेक्निक्स है। ओके, अब शुभम कुमार जी आप जाइए, धन्यवाद आपको। दोस्तों, अब शुभम कुमार जी की तरह आप भी बनिए और आप भी अगले डिस्क्रिप्शंस में मैं टेक्निक्स में कुछ बताऊंगा। इसमें किसी भी विषय वस्तु को, चाहे विज्ञान की बात हो, साइंस की, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, आर्ट्स की विषय की बात हो, सभी विषय को आप आसानी से एक इजी टेक्निक्स में आप याद कर पाएंगे। अब इनसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा, साइंस विषय पर मैं बात करूंगा। ओके, धन्यवाद।